اللہ رب العزت جل وعلا شانہ وعظم نوازہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار نور الانوار سر الاسرار شفیع صراط الدولہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حدیث پاک پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ عزیزان گرامی میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، جن کے گھر کا گدا ہوں ان سے وفا کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے قبلہ عالم شہباز خطابت پیر طریقت شاعر مکتوبات امام ربانی سید الاولیاء حضرت علامہ پیر محمد سعید احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا دیا ہوا سبق آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو اس کے پڑھنے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو آپ درگزر فرمائیں اور میری اصلاح فرمائیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی واقعہ کربلا جو ہے یہ عشق و وفا اور صبر و رضا کی ایک عملی تفصیل ہے۔ واقعہ کربلا جو ہے یہ صبر و رضا اور عشق و وفا کی ایک عملی تفسیر ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور خاندان نبوت نے میدان کربلا میں جو قربانیاں پیش کی ہیں تاریخ عالم میں اس کا جواب نہیں ملتا۔ مصیبتیں نبیوں پر بھی آئی، تکلیف رسولوں پر بھی آئی، اور یہ خدا کا قانون تھا اور خدا کا قانون ہے کہ جو جتنا بڑا ہوگا اس پر اتنی بڑی مصیبت آئے گی۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لے کہ جو جتنا بڑا ہوگا اس پر اتنی بڑی مصیبت آئے گی۔ تو عزیزان گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اذی نبیو قتل کا ما اذیتو، کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نبی اور رسول نہیں ستایا گیا۔ تو عزیزان گرامی یہ صبر و رضا ان تکلیفوں پر جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ضبط جگر میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو صبر و رضا اور یہ جو قربانیاں پیش کی ہیں خدا کو مطلوب تھی۔ صبر و رضا یہ خدا کو مطلوب تھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے آپ میدان کربلا میں گئے تھے، کیونکہ آپ نے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کرنا تھا، آپ نے قرآن کے پیغام کو عام کرنا تھا، آپ نے خلافت کی آبرو کو بچانا تھا، آپ نے شہادت کا تاج اپنے سر پہ سجانا تھا اور اس سوئی ہوئی امت کو چلانا تھا اور دین الہی کے اصولوں کو آپ نے بنوانا تھا۔ عزیزان گرامی اس مقصد کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں گئے تھے۔ تو عزیزان گرامی عوام و انصار اپنی
अपनी कुर्बानियां पेश करते रहे। मैदान करबला में बारी बारी जाने कुर्बान करते रहे और अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबईन, सय्यद उलमाए किराम और कुर्रा अपनी जानों के नज़राने पेश करते रहे और दाने शुजाअत पाते रहे और अपना हक़ वफा जो है वो अदा करते रहे। तो सामने वक्त ये तारीख की सही रवायात है कि जब खानदान बनु हाशिम के अफराद रह गए तो बारी बारी बनु हाशिम के अफराद मैदान में शहादत के दूल्हे बनकर निकलते थे और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आँख में शहादत के दूल्हे करके तैयार करके मैदान में भेजते भी थे और उनकी लाशें उठाकर वापस मिलाते थे। तो सामने मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सब्र का क्या आलम होगा। दोस्तों, इस दुनिया में नबियों और रसूलों के बाद ऐसा सब्र का आलम, ऐसी शुजाअत, ऐसी हिम्मत, ऐसी बहादुरी, ऐसी इस्तिकामत, ऐसा इस्तिकलाल, ऐसा इज़्म, ये सिर्फ हुसैन ही का हिस्सा है। ऐसा सब्र और आलम है अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा इस्तिकामत का कहे गिरा है कि ऐसा इज़्म पहाड़ों में पास इज़्म रहा है। कोहे हिमालय की चोटियां इतनी मुस्तकिल मजाज नहीं है जितना मुस्तकिल मजाज फातिमा का दाल था। अज़ीज़ान गिरामी, सारे सदमे सहे, सारी मुसीबतें बर्दाश्त की। एक बात कहना चाहता हूं, हमारे घर में अगर एक मातम हो जाता है, अज़ीज़ान गिरामी, पूरे मोहल्ले में सफेद बातों पिच जाती है, पूरे मोहल्ले का सुकून छिप जाता है। और कुर्बान जाए हुसैन के उस सब्र पर कि जिसने लश्कर हुसैन से 72 लाशें निकली है और उठाने वाले भी खुद है। अज़ीज़ान गिरामी, इसके बावजूद मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आपके माथे पर शिकन नहीं आया। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी उकाबी निगाहों की तेजी में फर्क नहीं आया, आपके बाजू के कस्बल में फर्क नहीं आया, आपके कदमों में लर्ज़त नहीं आई और आपकी हिम्मत कमर झुकी नहीं है, बल्कि आपके माथे पे इमामत का नूर था। आपके माथे पर इमामत का नूर था और आपके दिल में नबुव्वत का सरूर था। आपके सीने में मोहब्बत रसूल थी। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी निगाहों में इश्क की सुर्खी थी और सीने में मोहब्बत की गर्मी थी। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी थे, मुस्कुरा रहे थे। फिर जरा दिल से कह दो, वाह हुसैन, वाह हुसैन, तूने हद कर दी है, इज़्ज़त की हद कर दी, इस्तिक़लाल की हद कर दी, तूने इस्तिक़ामत की हद कर दी। ऐसे हुसैन को हाय हुसैन ना कहो, बल्कि वाह हुसैन, वाह हुसैन, तूने सब्र की हद कर दी है। अज़ीज़ान गिरामी, दिल लाकर आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गंजे शहीदा में लाशें इकट्ठी करने के बाद मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे की तरफ तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं कि रेत पर एक बिस्तर बिछा है, उस बिस्तर इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, शिद्दत का बुखार है, शिद्दत की गर्मी है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े हैं। कभी कभी थोड़ी देर के बाद गशी ऊँच करती है, बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है, मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन, क्या इरादा है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप करते हैं, या मेरे अब्बा जान, मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दीजिए। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन
आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप फरमाते हैं मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन, मैं तुझे तो बीमार बेटे को मैदान करबला में जाने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? तू बीमार है और मैं तेरे लिए दुआई तो पूजा है, तेरे लिए पानी का कतरा भी मुयस्सर नहीं है, तू बीमार है। ऐ मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर मैदान अगर मदीना का शहर होता मैं तेरी खिदमत करता, तेरे लिए दवाई लेकर आता, तेरा इलाज कराता। तू बीमार है, मैं तुझे बीमार बेटे को मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। ऐ मेरे बेटा, दूसरी वजह यह है कि तू खानदान नबूवत की आखिरी निशानी है। ऐ मेरे बेटा, तुझसे सदात की नसर चलेगी, क्योंकि अल्लाह को यही मतलूब है, इतना आखोइना कल कौसर, नबी की आल बढ़ेगी, फैलेगी, फूलेगी और वो तेरे जरिए होगी। सदात की नस्ल जो है वो तेरे लिए चलेगी। ऐ मेरे बेटा, तू जिंदा रहे, तू सलामत रहे, तू मैदान करबला में जाने की मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। तू ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज है, तू सकीना की आबरू का मुहाफिज है, तू उम्मे रबा शहरबानो उम्मे लैला को तू बहफात मदीने पहुंचाएगा। ऐ मेरे बेटा, तू मेरा जानशीन है, अगर तू शहीद हो गया तो फिर मेरा जानशीन कौन बनेगा? ऐ मेरे बेटा, तू इस उम्मत का इमाम बनने वाला है, क्योंकि जब इस उम्मत से इमामत का साया उठ जाएगा तू इस उम्मत का इमाम बनने वाला है। ऐ मेरे बेटा, तुझसे मेरी इज्जत रहेगी, तू रहेगा इमाम आएगा, तू रहेगा इमाम जाफर सादिक आएगा, तू रहेगा इमाम मूसा काज़िम आएगा, तू रहेगा इमाम अली रज़ा आएगा, तू रहेगा इमाम तकी आएगा, तू रहेगा इमाम नकी आएगा, तू रहेगा इमाम हसन असरी आएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे बेटा, तेरे रहने से सदात की नस्ल चलेगी। तू रहेगा, सैयद आएंगे, मोमन आएंगे, सरदार आएंगे, सफी आएंगे, तू रहेगा गौस आएंगे, कुतुब आएंगे, अब्दाल आएंगे, औताद आएंगे। ऐ मेरे बेटा, तू जिंदा रहे, तू सलामत रहे, तू रहेगा गौस आजम आएंगे, अब्दुल कादिर जीलानी आएगा, ख्वाजा अजमेरी आएगा, दाता अजमेरी आएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अपने बाप के इरशादात सुनकर गम की तस्वीर बनकर खामोश हो गई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने गम में तस्वीर बनकर, गम की तस्वीर बनकर आप खामोशी के साथ बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप थोड़ी देर के बाद खैमे के अंदर पर्देदार बीबियां बैठी है और खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर के बाद हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा आप बाप के भाई हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के पास तशरीफ लाती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं मैदान करबला में जाने की तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि लश्कर जदीद को मेरी इंतजार है। मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ, तो आज मेरा ये जी चाहता है कि जब मेरा नाना मुस्तफ़ा मिराज पर चले थे तो आपको जबरील ने बुराक पे सवार किया था, और जब मेरे बाबा अली खैबर को फतह करने के लिए चले थे तो अम्मा फातिमा ने आपको घोड़े पर सवार किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज ये फरीज़ा तू अंजाम दे, क्योंकि मुझे आज सवार करने वाला कोई नहीं रहा, आज मुझे अलविदा कहने वाला कोई नहीं रहा, आज मुझे रुखसत करने वाला कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आज ये फरीज़ा तू अंजाम दे। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की बेनियाज़ी, अल्लाह की हिकमत, हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा जो पहले ही कई शहीदों पर आंसू बहा चुकी है, खुदा की रज़ा ये है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा आपने सोचा कि अगर आज मैं रोती हूँ, अगर आज मैं रोती हूँ, फिर मीर हुसैन को अलविदा कौन कहेगा? हुसैन को इमाम को घोड़े पर कौन सवार करेगा? अलविदा कौन कहेगा? रुखसत कौन करेगा? अगर आज मैं रोती हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आंसू कौन पूछेगा? अगर आज मैं रोती हूँ, सकीना के साथ हाथ कौन रखेगा? अगर आज मैं रोती हूँ, उम्मे लैला शहरबानो उम्मे रबाब के साथ हाथ कौन रखेगा? अगर आज मैं रोती हूँ, फिर इनको हिफाजत को मदीने कौन पहुँचाएगा? अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा ज़ैनब हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को खिताब करके आप फरमाती है, ऐ मेरे वीर हुसैन, मैं तुझे अलविदा कहती हूँ, क्योंकि जितने भी सुबह से लेकर शाम तक असर के वक्त हो चुका है, जितने भी शहीद हुए हैं, ये है मेरे वीर हुसैन, ये तेरी खातिर शहीद हुए हैं, तेरे कदमों पर कुर्बान
तुझे अलविदा कहती हूँ। ऐ मेरे वीर हुसैन, मैं ये जानती हूँ तेरे जाने के बाद मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, मुझ पर मुसीबतें आएंगी। ऐ मेरे वीर हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पहलियां पहनाई जाएगी। ऐ मेरे वीर हुसैन, सकीना के कानों में बालियां छीन ली जाएगी, ज़ैनब के चादर हाथ से चादर उतार दी जाएगी और खैबर को आग लगा दी जाएगी। ऐ मेरे वीर हुसैन, अब मैं भी तेरी बहन हूँ। जिस माँ का तूने दूध पिया है उसी माँ का मैंने दूध पिया है। ऐ मेरे वीर हुसैन, तेरा बाप भी अली है, मेरा बाप भी अली है, पर मेरा नाम भी ज़ैनब है। मैं तेरे बच्चों की हिफाजत करूंगी, मैं जो हो सका अगर जान कुर्बान करनी पड़े तेरे बच्चों की खातिर मैं कुर्बान कर दूंगी। मैं तेरे पर्देदारों को वापस मदीने पहुंचाऊंगी और तू पूछेगा मन कर इनका ये परवान चलेंगे, मैं तेरी कब्र पर झाड़ूंगी, ये कुरान पढ़ेंगे। ऐ मेरे वीर हुसैन, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। ऐ मेरे वीर हुसैन, तू इन बच्चों का फिक्र न कर, मैं तेरी सोनी कब्र बना के उस पर कुरान पढ़ूंगी। अजीज़ान गिरामी, सईदा ज़ैनब ये खिताब फरमा रही है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को। आप फरमाती है, ऐ मेरे वीर हुसैन, तेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं तेरे कंधों पे उठा कर मैंने अपने कंधों पे उठा ली है। अब तेरे लश्कर की सिपा सलार जो है अब ज़ैनब है, तेरे काफिले की कमांडर इन चीफ जो है वो ज़ैनब है। मैं इनको बाहर मदीने पहुंचाऊंगी अज़ीज़ान गिरामी, और उसके बाद मैं अम्मा फातिमा की कब्र पे जाऊंगी, तेरा सलाम अर्ज़ करूंगी और नाम मुस्तफा के रोज़े पे जाकर तेरा सलाम अर्ज़ करूंगी और जाके ये अर्ज़ करूंगी कि नाले नू टुकड़े सुनावा दी जाके ते जाली नू फड़ फड़ हिलावा दी जाके ते आका की ना तेरा हाल देखो कीती है उम्मत जेड़ी मेरे नाल देखो। अज़ीज़ान गिरामी, ये जब इमाम सईदा ज़ैनब ने अर्ज़ की है, किताब किया है मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके किताबात की सदा वसीयतें सुनकर आपको इत्मीनान हो रहा है कि सईदा ज़ैनब जो है वो सारे प्रोग्राम को समझ चुकी थे। सामईन मोहतरम, मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तैयारी फरमाने के लिए आपने आवाज़ दी है कि ऐ शहरबानों, मुझे वो तंग लिबास दो जो मैं मैदान में जाने से पहले नीचे पहना करता हूँ, ऊपर खुला लिबास पहनता हूँ। वो खुला लिबास के नीचे जो तंग लिबास है वो मुझे दे दो, ताकि अगर मेरे लाश के टुकड़े कर दिए जाए, मेरे लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाए, तो मेरे नीचे ऊपर वाला लिबास जो है वो फट नहीं जाएगा, तो नीचे वाला लिबास जो है उससे मेरा पर्दा सलामत रहेगा। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन सलाम ने आपने नीचे तंग लिबास पहना है, ऊपर खुला लिबास पहना है, उसके ऊपर आपने अरबी कुबा पहनी है, फिर उसके ऊपर कंधों के ऊपर आपने राय मुस्तफा की चादर रखी है और हज़रत मीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी सिर्रा पहनी है और हाथ में हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेरे खुदा ऐद लेकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके जुल्फ़ के जुल्फ़ाने हैदरी को हाथ में पकड़ा है और कमर में अम्मा फातिमा की चादर का पट्टा बांधा है। और अज़ीज़ान गिरामी, घोड़े पे सवार होकर जब खैमे से निकलने लगे हैं, आपने खैमे वालों को आपकी सलाम कहा है, या सकीना तो वया ज़ैनबु वया उम्मे लैला वया उम्मे रबाब वया शहरबानो वया ज़ैनुल आबिदीन अलयौसतु अलैकुम मिन्नी सलाम। वो सलाम आखिरी खानदान अहले बैत, वो सलाम आखिरी खानदान अहले बैत, वो सलाम आखिरी पीवगान अहले बैत। आपने अलविदा सलाम कहा है। अज़ीज़ान गिरामी, जो अंदर के हालात हैं खैमे वालियों के साथ, जो हशर टूटा होगा, जो क़यामत गुज़री होगी, ये ज़बान बयान नहीं कर सकती। औलाद वालों, देखो जरा मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के खानदान के साथ वो जुल्म और सितम जो हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, उन टीवियों पर क्या हशर फूटा होगा जिनको ये इल्म है, जिनको यकीन है अब हमारे सर का ताज आ रहा है, अब ये वापस नहीं आएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इल्म है कि अब ये मेरा पता लेने के लिए मेरा बाप अब छोड़ के जा रहा है, मुझे वापस लेने के लिए ही आएगा।
खैमे के दर से आप निकलते हैं, यूं निकले हुसैन खैमे के दर से जैसे निकलता है जमाका किसी घर से। आप वह तशरीफ लाते हैं घोड़े पर सवार होकर, फिर क्या अंदर से एक आवाज आती है, चीख सुनाई देती है इमाम के दिल पे, कयामत गुजर जाती है। मुड़ के पीछे देखते हैं क्या हुआ, तो पता चला बीबी सकीना जो है, बच्ची सकीना जो है वो रो रही है, इमाम की आंखों में आंसू है। वापस आते हैं और सीने से लगाते हैं, बेटी क्या हुआ, अब बाप को रोको ना रोको, बाप को जाने दो, क्यों कलश के शरीर को मेरी इंतजार है, अब तेरे रोने के बड़े वक्त है। आप प्यार करते हैं, तलाशा देते हैं, आप बेटी जान बीबी अपना सकीना को, मासूम सकीना को तलाशा दे रहे हैं। और आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे रोने के भी बड़ा वक्त है, जब मेरी लाश पे घोड़े दौड़ जाएंगे उस वक्त रो लेना, जब मेरी लाश पे टुकड़े कर दिए जाएंगे उस वक्त रो लेना, जब आपको भूख दमशक के बरसात में फैलाया जाएगा, ऐ बेटी सकीना उस वक्त रो लेना, अभी तेरे रोने के बड़े वक्त है। हजरत सकीना अर्ज करती है, अब्बा जान मैं भी सब्र सीखा है पहले खानदान से मैंने भी सब्र सीखा है, अगर सब्र देखना चाहते हो तो देखो कि मैं मदीने से चली थी मक्के तक और मक्के से करबला तक मैंने सारी मुसीबतें सही है, मैं ना रोई, मैं प्यासी भी हूँ, मैं भूखी भी हूँ, और मैंने भी भूखी ज़ैनब के गोद पे मैंने भी तरबियत हासिल की है, मैं भी सब्र को जानती हूँ, सब्र और का दामन नहीं छोड़ती, मैं नहीं रोई। और सुबह से लेके असर का वक्त हो चुका है, मैं ना रोई, मेरा वीर असर गया है, मैं ना रोई, और मेरा वीर असर गया है, मैं ना रोई, मेरा चचा बात पानी लेने के लिए गया है, मैं ना रोई, मेरे औरत मोहम्मद गए हैं, मैं ना रोई, और मेरी माँ है, मेरे अब्बा जान मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में दिल है, पत्थर का दिल नहीं है, गोश्त का टुकड़ा है, आखिर मैं बच्ची हूँ, प्यारी हूँ, लाडली हूँ, मैंने कभी सफर नहीं किए, मैंने कभी आपसे जुदाई इख्तियार नहीं की, आज मुझे ये बता कर जाओ कब आओगे, किस वक्त आओगे। इमाम की आंखों में आंसू आ जाती, आपने फरमाया बेटी आज के बाद तू यतीम हो जाएगी, यतीमी का लफ्ज़ सुनकर सकीना करती है, मजा मैंने सिर्फ यतीमी का लफ्ज़ नहीं सुना, यतीम किसको कहते हैं, जब यतीम कोई हो जाए उसके साथ क्या होता है। मेरे इमामी अली मकाम ने फरमाया, मैं बेटी ना पूछ, ये मुसीबत बड़ी अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिसकी औलाद का बाप का साया उठ जाता है वो बच्चा यतीम हो जाता है। हज़रत सकीना करती है, अब्बा जान मुझे ये बताओ कि आज रात फिर मैं किसके पास सोऊंगी। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी सकीना आज रात तू अपनी अम्मा के पास हो जाना। अर्ज करती है, अब्बा जान अम्मा के पास तो वीर असगर सोया करता है। मेरे इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप फरमाते हैं बेटी तू कितना सादी बच्ची है, ये शहर मदीना नहीं है, ये करबला का मैदान है। आज के बाद असूल बदल गए हैं, यहाँ के कानून बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, आज के बाद तू अम्मा के पास हो जाना और मैं कयामत तक के लिए तेरे वीर असगर के पास सोया करूंगा। अजीज़ान गिरामी ये कहते हुए तेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बच्ची को प्यार करते हुए गलासा देते हुए आप मैदान की तरफ आप तशरीफ ले जाते हैं और सैयदा ज़ैनब आपको घोड़े पे सवार करती है। अज़ीज़ान गिरामी सलाम अर्ज़ करते हुए आप मैदान करबला की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। तो आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकिया मज़मून जो है आइंदा में अपने पास में आपकी खिदमत पेश किया जाएगा। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।